और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जियो। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। करतूत पशु दी और मानस जात जात मनुख दी लोक पचारा करे दिन रात। इस प्रकरण दे आधार ते गुरबाणी विचार आप सरवण कर रहे हो, जिन्हां जीव जंतुआं दा पशु पंछियां दा गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिक्र आया है। सतगुर सच्चे पातशाह ने इन्हां जीव जंतुआं दे नाम क्यों गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीते हन? किसे दा गुण करके, किसे दा अवगुण करके। आप विचारां सरवण कर रहे हो। अज असी कुंज दी विचार सरवण करनी है। कुंज जिसनूं साइबेरियन पक्षी भी कह देंदे हन, उस दी विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुंजां कुंज या इंग्लिश विच कह दिंदे ने साइबेरियन पक्षी। असी आम देखते हाँ जिथे भी जल स्रोत होंदे ने, झीलां होंदियां ने, नदियां ने, ये पंछी अक्सर उत्थे सानू दिखाई देंदे हन और बहुतात विच दिखाई देंदे ने। एक प्रवासी पंछी है जो साइबेरिया दे इलाके तो हिंदुस्तान दे विच होर देशां विच जांदे ने, क्योंकि उत्थे बहुत ठंड पैंदी है, बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो इन्हां नूं रिजक नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता। पानी दे जितने जल स्रोत होंदे ने सारे जम जाते हैं, बर्फ बन जाती है। रहन वास्ते इन्हां दे टिकाणे नष्ट हो जाते ने, खाण वास्ते भोजन नहीं मिलता है। ये फिर हज़ारां किलोमीटर की यात्रा तय करके ते गर्म देशां दे विच भारत विच आ जाते हैं। ये पक्षी ऐसा पक्षी है, लंबी उड़ारी भी ला सकता है, दरख्तां ते अपने घर बना के बच्चियां दी पालना भी कर सकता है, पानी विच रह के अपने भोजन की तलाश भी कर लैंदा है।
उडारी भी बहुत लंबी है, तैराक बहुत अच्छा है, सूझबूझ बहुत है इस दे विच। ये जैसे ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਇਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਲਰਾ ਪਾਟਨ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਹੈ ਗੋਮਤੀ ਸਾਗਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ।
बहुत प्रबल। एक तो इस विच एक खूबी है कि ये मिल जुल के काम करदी, हज़ारां दी गिनती विच पहुँचदियां ने, तो इन्हां विच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होंदा है। मिल जुल के अपने ग्रुप दे विच अपना जत्था बना के तो फिर चलदियां हन। दूसरा, इहदे अंदर ध्यान दा गुण बड़ा प्रबल है। ध्यान, एक मिल जुल के काम करना ते दूसरा इसदा ध्यान, जिसनों गुरबाणी ने आधार बना के ते विचार सिक्ख्या साड़ी चोली विच पाई है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी कुंजां दा जिक्र किया है। भाई साहब कहने कि कुंज कलों कुछ सीखना चाहिए है। ये जेड़े जल दे पंछी ने ना, इन्हां कलों सीखना चाहिए है। की सीखना चाहिए है? मैं काफ़ी दिनों तो ये विचारां कर रहा हाँ। जब मैं आरंभ किया सी दे पहले दूसरे तीसरे ते चौथे एपीसोड दे विच आपने सरवण किया कि कई जगह ते गुरबाणी ने मनुख नालों पशुओं नूं अहमियत दिती है। मनुख नालों भी ऐ इंसान तेरे नालों ये पशु पंछी चंगे हन, तो इन्हां कोलों कुछ सिख लै। पशु पंछियां कोलों भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि जैसे एक चींटी पाछे कोट चींटी चली जात, एक टग पग डगमग सावधान है। कीड़ियां दे विच एक खासियत होंदी है कि एक दे पिछे सारियां चल पैंदियां ने। एक दे पिछे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होंदा, कोई वैर विरोध नहीं होंदा। एक चलदी है, सारियां उहदे पिछे चल पैंदियां हन। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई उहदियां लत्तां खिचदा है भी तू पिछे आ ते मैं अगे आउणा है। कोई नहीं खिचदा है। भाई साहब कहते ने कीड़ियां कलों ये सीखना चाहिए है। दूसरी पंक्ति दे विच भाई साहब कहते ने जैसे कुंज पांत भली पांत शांत सहज में, उड़त आकाशचारी आगे अगवान है। तुसी जल दे पंछियां नूं, साइबेरियन पंछियां नूं कई बार आकाश विच उड़दा होया वेख्या होवे। एक अगे चलदी है, बाकी उहदे पिछे चलदियां हन। दो लाइनां बना के इस तरह वी शेप दे विच, एक अगे चलदी है, फिर दो पिछे, फिर होर पिछे, फिर होर पिछे। जिवें वी शेप उल्टा वी असी बनाने हैं ना, इस तरह का शेप बना के तो फिर उड़दियां ने। उहदा एक कारण ये भी है कि अगली जिहड़ी कुंज है वो हवा नूं कटदी है तो पिछों वालियां नूं उड्डण विच आसानी होंदी है उन्हां नूं, क्योंकि हवा पासे होंदी है तो गति बनी रहती है। वो जद थक जाती है तो उहदे स्थान ते दूजी आ जाती है, वो पिछे आ जाती है। वो जदों थक जाती है तो फिर तीसरी अगे आ जाती है, वो अपने आप पिछे आ जाती है। ये सिलसिला बिना लड़ाई झगड़े ते बिना वैर विरोध दे ये चलता रहता है, चलता ही रहता है। भाई साहब कहते हैं कि इन्हां कोलों सीखना चाहिए है। एक अगे लगदी है तो बाकी पिछे चल पैंदे ने। सानू भी चाहिए कि असी अपने आगूआं दे पिछे चलीए, अपने आगू दे पिछे, पर असी नहीं चलते हाँ। एक कोई अगे लग जाए सही, बाकी उहदियां लत्तां खिच्चण ते लग जांदे ने। ये बंदा अगे आ किवें गया है, ये किवें अगे आ गया है, इनू पिछे करो, इनू पिछे खिंचो। एक बारी मैं पढ़ रहा सा है तो एक चुटकुला ही बनाया सी किसी ने, बई नरक बनाए हुए सन। 4 नरक बनाए ने, एक हिंदुआं दा, एक मुसलमानां दा, एक ईसाइयां दा ते एक सिखां दा। सारे वखरे वखरे बंद किए हुए ने।
हिंदुआं दा जिहड़ा नरक सी उहदियां भी कंधां बड़ियां उच्चियां, मुसलमानां दा नरक उहदियां भी कंधां उच्चियां, ईसाइयां दा जिहड़ा सी उहदियां भी कंधां बड़ियां उच्चियां, जिहड़ा सिखां दा नरक सी ना उहदियां कंधां बहुत छोटियां छोटियां सन। ते उन्हां तिन्नां ही लोकां ने धर्मराज दे अगे ये शिकायत की भी साडियां कंधां एडियां उच्चियां बनाईयां ने ते सिखां दी इतनी नीवीं बनाई है कद, क्या ये कंध टप के स्वर्ग विच नहीं चले जाणगे? साडियां कंधां एडियां उच्चियां बनाईयां ने तुसीं। धर्मराज कहंदा भी ये नहीं जाणगे। ते बाकी जिहड़े वो है सन हिंदू मुस्लिम ते ईसाई, उन्हें आख्या भी क्यों नहीं जाणगे, कंधां बड़ियां छोटियां ने, एक छाल मारनगे तो स्वर्गां चले जाणगे। धर्मराज कहंदे भी नहीं, ये नहीं जाणगे। क्यों नहीं जाणगे? कहंदे एक ने कंध ते चढ़ना ते 10 ने लत्तां खिचणियां ने उहदियां, ये किधरे नहीं जा सकते हैं, किधरे भी नहीं। और ऐसा देखण दे विच आंदा एक बंदा कोई अगे निकलदा होवे, 4 उहदियां लत्तां खिचण वास्ते तैयार खलोते होए ने, ये अगे निकल किवें गया? उहदे विच फिर ना वो आप अगे आ सकते हैं ते ना किसी होर नूं आण दिंदे हैं, कुछ भी नहीं होंदा है। मैं तो इत्थों तक देख के हैरान हो गया भी साडे रागी ग्रंथी प्रचारक कोई नवीं चीज़ लै लैन। जिवें किसी ने एक स्कूटर लिया, ग्रंथी सी, 5-6 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह, विचारे ने पाई पाई जोड़ के, क्योंकि कहण नूं ते असी कह देने कि ये गुरु घर दे वजीर ने, पर तनख्वाहां उन्हां दियां चपड़ासी तो भी गई गुजरियां होंदियां ने, चपड़ासी तो भी गई गुजरियां। 5-5 हज़ार तो गुरु दे वजीर, राजे तो बाद वजीर दा नंबर आउंदा वे, ते तनख्वाहां देखो तुसी। उन्हें विचारे ने पाई पाई जोड़ के किधरे स्कूटर लिया ते सारी कमेटी ने उसनूं ऑफिस विच बुला लिया भी तू स्कूटर किवें लै लिया वे, तेरी इतनी हिम्मत किवें होई है, पैसे कित्थों आए हैं? उहदे करैक्टर दे उत्ते शक करन लग पे, किधरे गोलक तो नहीं चोरी करदा, किधरे किसी कोलों मंग के तो नहीं लए हैं पैसे। साडे लोकां दा मतलब ये है कि साडा ग्रंथी वो गड्डी दे उत्ते घूमे क्यों? वो पैदल ही ठीक है, वो साइकिल ते ही ठीक है। इस तरह दे भी लोग ने। कुछ एक ऐसे भी हैं जिहड़े दिल खोल के गुरु के वजीरां दी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं, किसी भी चीज़ का बीज नाश नहीं होंदा है, किसी भी चीज़ का। कुछ ऐसे भी हैं जो मदद करते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि कुंजां कलों ये सीखना चाहिए है, जैसे कुंज पात भली पांत, शांत सहज में उड़त आकाशचारी आगे अगवान है। एक अगे लग जाती है, जदों थक जाए पिछे आ जाती है, दूजी फिर अगे हो जाती है। गुरुद्वारियां दे विच कई प्रधानां ने, खजांचियां ने, स्टेज सकत्तरां ने ऐसे कब्जे किए हुए ने जिवें उन्हां दे प्यो दी जागीर होंदी है, वो कब्जे किए हुए ने। भी ठीक है, तू सेवा कर ली है, तू एक पासे हो, किसी होर नूं मौका दे, वो किसी होर नूं मौका देवे, चलदा रवे, सारे मिल के सेवा करन। पर ऐसा नहीं होंदा है, कब्जे करके बैठ जाते ने भी दूसरा कोई अगे आवे ही ना, दूसरा कोई अगे ना आवे। कुंजां कोलों ये सीखना चाहिए वे, एक थक जाती है, वो पिछे आ जाती है, दूसरी अगे आ जाती है, सारियां नूं मौका देंदे ने, वो सारियां नूं मौका। भाई साहब कहते ने कुंजां कोलों ये सीखना चाहिए है, जैसे मृग माल चाल चलत टलत नाहे, जत्र तत्र अग्र भागी रमत तत ध्यान है। भाई साहब कहते ने हिरन वेखो ना, सारे जत्थे दी कमांड एक हिरन करदा है, वो जिथे जांदा है बाकी सब उहदे पिछे जांदे हन। भाई साहब कहते ने इन्हां कोलों सीखना चाहिए है, कीटी खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाहें,
प्राणी गुरपंथ छाड़ चलत अज्ञान है। भाई साहब कहते ने एक मनुख ही है जो अपने पंथ नूं छोड़ के, अपने आग्यूआं नूं छोड़ के ते दूसरे पासे जांदा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे आगू ने, असी उन्हां दी सिੱਖਿਆ नूं छोड़ के, उन्हां दे उपदेशां नूं छोड़ के अज दूजे पासे कसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा ते डुबांगे। अपने आगूआं दे पिछे असी चलदे नहीं हाँ। गुरबाणी कहंदी है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए कोट जन्म के किलबिक नासे, हर चरणी चित लाए। संतां ने जिहड़ा मार्ग बनाया है परमेश्वर की प्राप्ति का, तो उहदे पिछे चल, उन्हां दे दसे होए मार्ग दे उत्ते चल। कोट जन्म के किलबिख नासे, करोड़ों ही जन्मां दे तेरे किलबिख पाप सब नाश हो जाणगे। हर चरणी चित लाए, परमेश्वर दे चरनां नाल चित लाएगा, संतां दे दसे होए मार्ग ते चलेगा, तेरा पार उतारा हो जाना है। क्योंकि असी सही मार्ग ते अगर चले ही ना तो मंजिल तक किवें पहुँचांगे। जिहड़े चले ने सानू उन्हां दे नक्शे कदम दे उत्ते चलना पवेगा। जैसे गौरमेंट ने सड़कां बनाईयां ने मंजिल ते पहुँचण वास्ते, अगर सड़क नूं छोड़ के किसी होर रस्ते ते चलांगे फिर ठेडे ठुड्डे खावांगे, पटक जावांगे, मंजिल दी प्राप्ति नहीं होवेगी। महाराज दी बाणी कहंदी है कि मेरा मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बताओ मार्ग हम पीछे लाग चली। हे हरि दे संतों मैनू मार्ग दसो, मैं तुहाडे पीछे चलांगा, हम पीछे लाग चली। जिवें कूंजां चलदियां ने ना अपने आगू दे पिछे, असी अपने आगूआं दे पिछे चलीए असी, पर आगू भी होवे सही। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जिहड़ी गुरु दी चाल है ना, है गुरु के सिख मित्र, उस चाल दे उत्ते चल, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु ने मार्ग दस्या है ना, उस मार्ग दे उत्ते तू चल। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आप जी नूं सरवण करांदा पिया, क्योंकि विचार तो बहुत लंबे होंदे ने पर समय की पाबंदी भी होंदी है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणी जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे। जो गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलदा है, जो गुरु दे दसे हुए राह दे उत्ते चलदा है, ओही गुरु का सिख अखवांदा है, ओही मंजिल तक पहुँचदा है। अपने पाणी जो चले पाई, जो अपने बनाए हुए मार्ग ते चलदा है, अपने मन दे पिछे लग के चलदा है, तो महाराज कहंदे ने विछड़ चोटा खावे। वो फिर चोटा खांदा है, मंजिल ते नहीं पहुँचता है। कूंजां हज़ारां किलोमीटर का सफ़र करके अगर भारत विच पहुँच जांदियां ने, तो उहदी वड्डी वजह यह है कि वो अपने बजुर्गों के पिछे चलते हैं, इस करके पहुँच जाते। सियाणियां दे पिछे चलते हैं, इस करके पहुँच जाते हैं। अगर हर एक अपना अपना राह लभ के चलन लग पैन तो फिर पटक जाएंगे। फिर भड़कण विच सिवाए मौत तो होर कुछ नहीं मिल सकता है। तो एक तो कुंजां दे विच वड्डा गुण है कि वो अपने आगूआं दे पिछे चलते हैं। सानू भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पिछे चलना चाहिए है, गुरु दे उपदेश दे पिछे चलना चाहिए है। दूसरा है कुंज दे अंदर ध्यान, इहदा ध्यान बड़ा पक्का है। कुंज दा गुरबाणी ने इसनूं आधार बना के साड़ी चोली दे विच सिक्ख्या पाई है।
जैसी गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ओह राके चीत पिछे बिच बचरे नित हिरदे सार संभाली। कूंजां जदों हिंदुस्तान दे विच आ जांदियां हन, साइबेरिया नूं छोड़ के, क्योंकि उत्थे भोजन नहीं लभदा है, अपने अंडियां नूं अपने बच्चियां नूं उत्थे छोड़ के आ जांदियां ने। महाराज ने जिक्र किया है, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे। जिस तरह कूंज अंडियां नूं छोड़ के ते हिंदुस्तान विच आ जाती है, गर्म देशों विच आ जाती है, लेकिन उहदे हिरदे दे विच ध्यान अपने अंडियां दा चलदा रहिंदा है। ध्यान अंडियां दा है, हर वक्त अंडियां दा ध्यान करदी है। महाराज कहंदे ने कूंज दे ध्यान दे नाल जिहड़े कुंजां दे अंडे हुंदे ना, ਉਹ सड़न तो गलन तो बच जाते हैं, खराब नहीं होंदे हैं, बल्कि उन्हां दे विचों बच्चे निकल के बाहर आ जाते हैं, बच्चियां दा जन्म होंदा है। जिन्हां दे बच्चियां दा जन्म हो चुका है, जिहड़े बच्चे जन्म लै चुके ने, उन्हां नूं छोड़ के आ गई है, कूंज हर वक्त उसका ध्यान करती है। हर वक्त कूंजां दे ध्यान दे नाल कूंजां दे बच्चे ते अंडे जिहड़े ने वो खराब होण तो, गलन तो, मरण तो बच जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसका बखूबी जिक्र किया है। महाराज कहते ने, उडै उड आवे से कोसां, तिस पाछे बछरे छरिया। हज़ारां किलोमीटर की यात्रा करके बच्चियां नूं छोड़ के जिहड़ी आ गई है ना, तिस पाछे बछरे छरिया, जिहड़े बच्चियां नूं पिछे छोड़ आई है। तिन कवण खिलावे कवण चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सानू जो उपदेश देना चाहते हैं महाराज सच्चे पातशाह जी, वो तो ये है कि तू रिजक की चिंता क्यों करता है। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। तू क्यों चिंता करता है, रिजक का दाता वो परमेश्वर है। हुण महाराज ने मिसाल दी है भी तू क्यों चिंता करता है। जिन्हां बच्चियां नूं कुंजां छोड़ के आ गईयां हन, उडै उड आवे से कोसां। हज़ारां कोसां तो जिहड़ियां बच्चियां नूं छोड़ के आ गईयां हन, तिन कवण खिलावे, उन्हां नूं कौन खिलांदा है। कवण चुगावे, कौन चुगांदा है उन्हां नूं। तिन कवण खिलावे कवण चुगावे, मन मह सिमरन करिया। महाराज कहंदे ने कोई नहीं खिलांदा, कूंजां मन दे विच सिमरन करदियां हन अपने बच्चियां दियां। मैं फिर अर्ज करां सी, ध्यान लाना, क्योंकि ध्यान तो बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ध्यान तो बिना धर्म नहीं है। अगर ध्यान ही नहीं है तो कादा धर्म होया। फिर ध्यान करदियां ने अपने बच्चियां दा। ध्यान इतना गहरा होंदा है कि परमात्मा ने हज़ारां किलोमीटर दे दूरी दे विच कूंज दे ध्यान दे सदके उन्हां दे बच्चियां दे रिजक दा प्रबंध कर दिता। हुण देखो, गुरबाणी दी कथा करदी है। असी तां सिर्फ थोड़े जे शब्दां नाल इन्हां नूं खोलदे हां, बाकी सहारा सानू गुरबाणी देंदी है। गुरबाणी दी कथा करदी है। अज तो कोई 70 साल पहले, भारत पाकिस्तान दी वंड तो पहले, फ्रंटियर दे इलाके दे विच जो अज पाकिस्तान विच रह गया है, मस्कीन जी बहुत छोटे सन, 5-6 साल दी उम्र उन्हां दी। भाई चांद कीर्तन करते सन। भाई चांद है वो मुसलमान सन, गायक बहुत अच्छे सन। वो प्रमाणा दा कीर्तन उन्होंने आरंभ किया सी। उत्थों उन्हां तो ही ये प्रथा चली है। वो शब्द नूं आधार बना के फिर उन्हां दे पिछे
प्रमाण दे दे के ते शब्दां नूं शब्दां दे राही साबित कर दिंदे सन। किसी भी एक प्रकरण नूं लै के ते गुरबाणी दीआं पंक्तियां नूं पंक्तियां ही पंक्तियां दी व्याख्या कर दिंदे सन। बिना कथा कीतियां बिना व्याख्या कीतियां उस शब्दां दे विच ही कथा कर दिंदे सन। गल स्पष्ट हो जाती सी। ਸਰੋਤੇ भी बड़े समझदार होया करते सन। मस्कीन जी कहते ने मैं आप उन्होंने सामने बैठ के कई बारी सुनिया है। भाई चांद मुसलमान सन और जिथे हिंदू वीर आते सन ना कीर्तन सुनने वास्ते, मुसलमान भी बहुत सारे आते सन, सिख भी आते सन। हुण भी जब मैं 2 बारी समागम करन गया, बहुत सारे हिंदू बैठते ने, बहुत सारे मुसलमान वीर आउंदे ने, सिख तां आउंदे ही ने, बहुत प्यार करते हैं। गुरबाणी दी कथा करती है। अगर महाराज कहते ने उडै उड आवे से कोसां, तिस पाचे बचरे छरिया, तिन कवण खिलावे कवण चुगावे, मन मह सिमरन करिया। मन विच सिमरन कर दिए बच्चियां नूं रिजक दी प्राप्ति हो जाती है। बच्चियां नूं हुण इस दी व्याख्या फिर गुरबाणी करती है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कबीर चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे। भगत कबीर साहब का श्लोक है। भगत कबीर कहते ने कि कूंजां जद बच्चियां नूं छोड़ के आ जांदियां ने हज़ारां किलोमीटर, जदों दाना चुगदियां हन ना, कुछ खांदियां ने, चुगे चितारे बच्चियां नूं चेते करदियां हन, बच्चियां दा ध्यान करदियां हन। जिन्हां दे बच्चे नहीं हन, अंडे ने, वो अपने अंडियां दा ध्यान करदियां हन। महाराज दी बाणी कहंदी है जैसे जैसो आंडो हिरदे माहे, जैसो दानो चक्की दराहें। गुरबाणी दे प्रमाण हैं कि जिस तरह चक्की दी किल्ली दे विच लग के दाने पीसण तो बच जाते हैं, 2 पटां दे विच 2 पड़ दे विच जिहड़ी किल्ली आउंदी है ना, उहदे उत्ते जिहड़े दाने लग जाते हैं वो बच जाते हैं। इसे तरह ही कूंजां अपने अंडियां दा बच्चियां दा ध्यान करदियां ने। महाराज कहते ने वो बच जाते हैं। कबीर साहब अगर भगत कबीर साहब जी का यह प्रमाण ना होंदा तो अज जैसे लोग कई साखियां दे उत्ते शक करते ना, जिवें एक बीबी की साखी है भी वो काबुल तो अमृतसर आई, सरोवर की सेवा करती है, बच्चा उहदा अपने घर विच सी ते वो सेवा करदियां करदियां ही हाथ हिला देंदी है हवा दे विच। ते किसी ने पूछया भी ये की करदी पई है, उन्हें आख्या मेरा बच्चा है, मैं पलने दे विच झूले विच पा के आई हाँ, मैं उन्होंने झूला देनी हाँ भी किधरे रोवे ना। लोकी शक करते ने इहदे उत्ते, इन्हां साखियां दे उत्ते शक कीता जांदा है। भगत कबीर साहब का यह श्लोक प्रमाण करता है कि कबीर चुगे चितारे पी चुगे, चुग चुग चितारे। कूंजां जदों भोजन करदियां हन कुछ भी चुगदियां ने, चुगे चितारे चेता करदियां हन, ध्यान करदियां ने बच्चियां दियां, चुग चुग चितारे बार बार चुगदियां ने ते अपने बच्चों का ध्यान करदियां हन। जैसे बच रहे कूंज मन माया ममतारे। जिस तरह कूंजां अपने बच्चों का ध्यान करदियां हन, महाराज ने सानू एक दृष्टांत दिता है कि मनुख भी माया दी ममता दे विच फसिया रहिंदा है, हर वक्त माया दे विच फसिया रहिंदा है। कूंजां ध्यान करदियां हन अपने बच्चों का ते रिजक उन्हां नूं पहुँचदा है, जो इत्थे खांदियां ने हज़ारां किलोमीटर तक पहुँचदा वे, बच्चों की पालना होंदी है। महाराज कह रहे हैं तिन कवण खिलावे कवण चुगावे, मन मह सिमरन करिया।
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਏ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੀਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਪੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਚਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਧਿਆਤਾ, ਧਿਏ और ध्यान। ध्याता ध्यान करन वाला, जैसे मैं। ध्येय ध्येय कहते ने जैसे मन लो कि मैं किसी खंबे का ध्यान करता हाँ, खंबे दे विच मैं ध्यान जोड़िया है। ध्यान मेरा इतना गहरा चला जावे कि मैं विचों गैब हो जावां ते थंबा ही रह जावे। बस मैं एक दृष्टांत दिता है, खाली बस एक दृष्टांत। जैसे कूंजां दाना चुगदियां ने, चुग चुग के ध्यान करदियां हन। ध्यान इतना गहरा चला जाता है कि कूंज आप मिट जाती है। उन्होंने इंज लगता है जिवें बच्चे चुगदे पे ने, बच्चे चुगदे पे। उहदा ध्यान इतना गहरा चला जाता है। इसनूं कहंदे ने ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्यान दे नाल संबंध जोड़िया जा सकता है। जितना ध्यान गहरा जाएगा, संबंध उतना ही साडा मजबूत हो जाएगा। जैसे भगतां ने ध्यान कीता, भगत ध्याता ने किदा ध्यान कीता? परमेश्वर दा। परमेश्वर ध्येय है। दोनों दे विच संबंध की है? ध्यान दा संबंध है। और तो कोई संबंध नहीं ना बन सकता। रब दा ते कोई रूप ही नहीं है। असी रूप विच हाँ, जड़ वस्तु दा उहदे विच परमात्मा विच किवें मिलाप हो सकता है, किवें संबंध जोड़ सकता है? ध्यान दे नाल संबंध जोड़िया जा सकता है। ध्यान नाल भगतां दा ध्यान इतना गहरा चला जाता है, इतना गहरा चला जाता है, उन्होंने इंज लगता है जिवें बस हुण केवल परमात्मा ही है, होर कुछ नहीं है, बस सिर्फ परमात्मा है। ध्यान
इतना गहरा चला जाता है। ताई ते आख्या कि तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तेरे विच ते मेरे विच कोई फर्क ही नहीं रह गया। ध्यान इतना गहरा चला गया है, मनुख अपना आप विचों मिटा देंदा है। जदों तक असी अपने आप नूं मिटावांगे नहीं, साडा ध्यान इतना गहरा जाएगा नहीं, परमात्मा नाल संबंध साडा नहीं जुड़ सकता है। तो ध्यान करना है। ध्यान किस दा करिए? गुर की मूरत मन में ध्यान, गुरु दी मूरत दा ध्यान करो हिरदे दे विच, और अभ्यास करो। ध्यान जितना गहरा जाएगा, संबंध साडा उतना ही मजबूत हो जाएगा। एक समा ऐसा आएगा कि मैं मिट जावांगा। जैसे कूंजां नूं इंज लगता है जैसे मैं है ही नहीं, बच्चे ही चुगदे पे ने बस। उहदे ध्यान दे राही वो भोजन उन्हां बच्चियां तक पहुँचता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, तू भी इस तरह ध्यान कर। अपना आप जद तेरा ध्यान विच जुड़ के मिट जाएगा ना, फिर केवल परमात्मा ही रह जाएगा, होर कुछ नहीं रह जाना है। फिर ध्यान तरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ शक्तियां हर जगह ते वरत रहीਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ रहमतां ਜਿਹਦੀਆਂ बख्शिशां हर जगह ते फैलियां होईਆਂ ने, ਉਹਦਾ ध्यान अपने हिरदे ਦੇ ਵਿੱਚ करो। पर असी ध्यान तक दी लाउंदे ही नहीं हाँ। असी तां पाठ भी करने आ, सामने टीवी चलदा पिया, ध्यान पता नहीं कित्थे जांदा पिया। हत्थ विच गुटके पकड़े हुए ने, शब्द कीर्तन चलदा पिया वे। कई गुरुद्वारे इधर कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, वो गुटके लैके पाठ करते पे ने। ना वो पाठ कर सकेगा, ना वो कथा कीर्तन सुन सकेगा। हत्थ विच माला पकड़ी हुई है, ध्यान पता नहीं कित्थे जांदा पिया। ध्यान करना है एकांत विच बैठ के अमृत वेले। गुरु रामदास महाराज बख्शिश करते हैं कि धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन बना के उहदे विच ध्यान जोड़ के परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। बड़ा लंबा सब्जैक्ट है, पर समा हो गया हुण। महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन, जितना ध्यान गहरा कूंजां दा है, ऐसे ध्यान दी सानू बख्शिश होवे, ताकि परमात्मा दे नाल साडा संबंध जुड़ सके। जैसे कूंजां ध्यान करके अपने बच्चियां दी पालना करते हैं, क्योंकि संबंध जुड़ जाता है। साडा संबंध परमात्मा नाल जुड़ गया तो उहदियां जिहड़ियां रहमतां ने, जो बख्शिशां ने, वो साडी झोली विच पैणगियां। महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा करन, भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।